I'm going to conclude this chapter. आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट जो है वो हम खत्म करने जा रहे हैं। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। दिस इज रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट फॉर एरर्स एंड ओमिशन, या इसको पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ओके, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट फॉर्मेट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू in previous videos. Now see the question. ठीक है, this question is concerned with there is some errors. There are two partners, Sohan and Mohan, whose closing capital is given to you, and after that it is given that the interest on capital which is to be provided according to the partnership deed at the rate 5% per annum has been omitted. Okay. So now how that has to be rectified or adjusted in the capital account of the partner, we will see. Okay, so first of all we have to calculate the opening capital, because of I have told you in previous videos that interest on capital must be calculated on the opening capital balance of the partners. But in the question we are given the closing balance, therefore we need to calculate opening capital balance of the partners. How that is capital? It already has been done by us also. Okay. Now look at the format when you are given the closing capital, how we arrived at opening capital. The closing capital, in which we have to add drawings and subtract profit which has already been distributed, then we will get opening capital. So here the capital, closing capitals of Sohan and Mohan are given 60,000 and 50,000 respectively. Their drawings are 10,000, 10,000 each. They have been added. Then profit is given 25,000, which has been divided among the partners. So between the partners in the ratio 3:2. तो 3:2 में हमने 25,000 को डिवाइड करके और यहाँ पे रखा हुआ है। तो उसके बाद जो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ रही है, सॉरी, दैट इज 55,600 एंड 50,400. नाउ कम टू द मेन सॉल्यूशन, दैट इज अवर where we have prepared statements showing the amount to be adjusted. Okay, the particulars, then total, then partner's name. Okay, यहाँ हम यहाँ पे लिखते हैं amount to be credited but ignored. ठीक है, तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम विच इज कैलकुलेटेड ऑन दिस फिगर. ओके, यहां पे मैंने इस फिगर को लिखा हुआ है कैलकुलेट करने के बाद 2780, 2520 एंड 5300 टोटल. नाउ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, देयरफॉर इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ठीक है, दैट प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, therefore it is to be deducted. So total of profit which has been changed 5300, it is to be divided in the ratio 3:2. Okay, 3:2 में मैंने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे माइनस किया हुआ है. Now we come to the amount which is to be adjusted in the capital account of partners. तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे. This amount was to be credited but we have already credited more amount. Therefore, differential amount will be debited in the capital account of partner. Here, 2520 was to be credited, but we have credited less amount by the same 400 rupees. This partner will be credited. Now we come to the journal entry, which is to be passed in the books of account to adjust this error. That is Sohan's capital account debit to Mohan's capital account. This is the way doing the push. ओके, ये तरीका है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या पास्ट एडजस्टमेंट के लिए या एरर ऑफ ओमिशन के लिए बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आइदर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग टू द राइट. अब मैं आपको इसके बाद नया क्वेश्चन बता रहा हूं सेम पैटर्न पर. वो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इजी है ना. मैं यहां पर ये मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर चेंज कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर इज 32 नाउ. And number of partners are 3. Amounts will change. Entry will also change. Partners are Rinki, Pinky,
and Chicky. What is the question? There are three partners. They are having capitals of rupees 1,20,000, 1 lakh and 80,000. The error is this, or omission is this: the interest or capital which was to be provided to the partner, which was not to be provided as per the partnership deed, but by mistake that has been given to the partners at the rate 5% per annum. Okay. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, बट बाय मिस्टेक वो पार्टनर्स को दे दिया गया है एट द रेट 5% पर एनम. ओके, तो अब हमें यहां देखना है कि क्या अमाउंट हमें दी जानी चाहिए थी और क्या हमने दे दी है. तो जो अमाउंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स बैक करेंगे. तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं लिखूंगा, amount already credited as IOC at the rate 5% per annum. Okay, this amount is 9,000. Then 6,000. Sorry, 7,200 and 4,800. Total is 18,000. Okay, रिंकी, पिंकी एंड चिंकी तीन पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 1,20,000, 1 lakh and 80,000. The interest on capital is given at the rate 6% per annum. Okay, 5% नहीं, 6% per annum, which has already been given. तो एक्चुअली ये दिया जाना नहीं था, तो हम इसको यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज आईओसी में लिखेंगे और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट. In the ratio three, 2 और 1. ओके, ये टोटल अमाउंट यहां पर आ जाएगा 18,000 और इसको हम डिवाइड करेंगे 3:1 के रेशियो में. और अब हम फाइनल फिगर निकालेंगे, नेट एडजस्टमेंट. ये नील, ये 1800, ये नील और ये 1800, ये माइनस में. जो माइनस में आ रहा है इस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू चिक्कीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रिंकीज कैपिटल अकाउंट. 1800 and 1800. पिंकी के अकाउंट में जितना डेबिट आपने किया है उतना ही क्रेडिट भी होना था, तो इसका मतलब ये कि देयर इज नो चेंज. उसके अकाउंट में ना कुछ डेबिट होगा ना कुछ क्रेडिट होगा. इस तरीके से यहां पर ये जो एरर थी
रेक्टिफाई हो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपस में डेबिट करके या क्रेडिट करके। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या एरर हुई है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। देयर आर 3 पार्टनर्स X, Y and Z. Interest on capital was to be allowed to the partner at the rate 6% per annum, whereas it has been allowed only at the rate of 5% per annum. 1% आपने इंटरेस्ट उनको कम दिया है, ठीक है, तो हमें वो 1% इंटरेस्ट उनको और देना होगा। तो यहां पर अब ये फिर से चेंज होंगे फिगर्स, फॉर्मेट वही रहेगा, खाली फिगर्स चेंज होते जाएंगे और एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एज IOC एट द रेट 1% से आपको अमाउंट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उनको और देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देना चाहिए था 6%, लेकिन आपने उसको कितना दिया है 5%। तो इसका मतलब ये है कि 5% में देयर इज नो एरर। एरर कितने परसेंट की है? 1% की है। तो वी विल राइट हियर 1% अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज, ये वर्किंग नोट है आपका, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ IOC एट द रेट 1%। अमाउंट्स आपको दे रखे 3, 8500, 7500 एंड 7000। This amount 8500 is calculated at the rate 5% per annum. Therefore, we will divide it by 5%. This amount is also 5% and this amount is also 5%. हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1% का अमाउंट आएगा 1700, 1500 एंड 1400। इसका मतलब हुआ कि हमने इसको 1700 कम दिए हैं, इसको 1500 कम दिए हैं और इसको 1400 कम दिए हैं। तो हम ये अमाउंट इनको दे देंगे 1700, 1500 एंड 1400। ओके, और इन सब का हम टोटल करेंगे तो टोटल का अमाउंट आएगा 0, 0, 9, 6, 2, 3 एंड 4, 4600। अब ये जो 4600 है इसको हम अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड एज प्रॉफिट, in the ratio ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है उस रेशियो में ये अमाउंट डिवाइड किया जा चुका है, जो रेशियो है 2, 2 एंड 1। अब इस अमाउंट को 4600 को हम डिवाइड करेंगे 2 to 1 के रेशियो में, जिसका अमाउंट आ रहा है 1840, 1840 एंड 920। ये है नेट एडजस्टमेंट। $140 minus means debit, 340 minus means debit और 480 प्लस मीन्स क्रेडिट। अब हमारी जो करेक्शन एंट्री होगी वो करेक्शन एंट्री होगी पार्टनर्स के नाम चेंज करने हैं मुझे, X,
वाई एंड जेड। तो यहां पर जेड क्रेडिट होगा, ये दोनों डेबिट होंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू Z's कैपिटल अकाउंट। ओके, यहां पर अमाउंट होगा 140, 340 एंड 480। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताए। अगले 3 क्वेश्चन मैं आपको फिर सॉल्व करके बताता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। क्वेश्चन नंबर 34 इज हियर। ब्रीफली मैंने उसको यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन के कंटेंट्स हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी who are sharing profits in the ratio 2:1:1. Their capitals are 60,000, 40,000 and 50,000. While dividing the profit, they have ignored some contents, some terms and conditions. They are interest on capital at the rate 10% per annum, interest on drawings, salary to B and commission to C. ये चीजें जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो इनको इग्नोर कर दिया गया। नाउ वी हैव टू मेक रेक्टिफिकेशन to adjust the difference which is generated due to this error। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ओमिशन। यहाँ पे कुछ ओमिशन किया गया है जिसको हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें उसको सॉल्व करना है। ये फॉर्मेट अपन पहले भी लिख चुके हैं और इससे पहले भी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं। वो जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस में लिटिल बिट नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत कम थे, इसलिए वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और छोटे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं अमाउंट टू बी क्रेडिटेड बट इग्नोर्ड। वो अमाउंट जो हमें क्रेडिट करनी थी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन वो इग्नोर हो गई, छूट गए, भूल गए, व्हाटएवर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए जो अमाउंट हमें देनी है, यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कैपिटल्स आर गिवन हियर, उसका हम 10% कैलकुलेट करके यहां पे लिखेंगे। तो पहले वाले पार्टनर्स में 6,000, सेकेंड में 4,000 एंड थर्ड में 5,000। टोटल इज 15,000। आफ्टर दिस सैलरी वॉज टू बी गिवन टू बी विच इज इग्नोर्ड, तो हम यहां पे बी के कॉलम में सैलरी को लिखेंगे। तो बी इज हियर 6,000। ओके, सी में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, टोटल 6,000। देन इज कमीशन टू सी। सी को कमीशन देना था जो हम इग्नोर कर चुके हैं, हमने नहीं दिया है, तो हम यहां पे सी के अकाउंट में लिखेंगे 7,000 और टोटल में 7,000। ओके, अब टोटल अमाउंट विच वॉज टू बी क्रेडिटेड इट इज 0,0,0,6 plus 7, 13 plus 5, 18, 28,000 totality में। In account of A 6,000, in account of B 10,000, in account of C 12,000। ठीक है, these were the amount which were to be credited in the capital accounts of the partner, but they were ignored। One more amount is this amount to be debited। वो अमाउंट जो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, बट दैट हैज ऑलरेडी ऑल्सो बीन इग्नोर्ड। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विच इज गिवन हियर 1,000 इन केस ऑफ ए, 1,000 इन केस ऑफ बी एंड 2,000 इन केस ऑफ सी। टोटलिटी में 24,000। Sorry, 4,000. Now this is the total of credits and this is the total of debit. 1,000,
1000 and 2000, right? अब what we have to do, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, नेट अमाउंट हम निकालेंगे विच इज टू बी क्रेडिटेड. तो नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इज 24,000 इन टोटल, of which 6,000 minus 1,000 is equal to 5,000 was net to be credited to A. 10,000 minus 1,000 is equal to 9,000 to B, and 12,000 minus 2,000 is equal to 10,000 to C. This was the net amount. डेबिट और क्रेडिट के बाद नेट अमाउंट जो बच रहा है, this was the net amount to be credited to the partners, but due to this error कि ये अमाउंट हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो due to this profit will increase and the profit is divided among the partners in the ratio 2:1. तो इसका मतलब ये 24,000 जो है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, बट नॉट इन दिस वे. वी हैव क्रेडिटेड 411. ओके, तो 12,000, 6,000 एंड 6,000. मतलब ये कि जो अमाउंट इस अमाउंट के रूप में क्रेडिट होना चाहिए था, दैट हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स 12,000, 6,000 एंड 6,000. ठीक है. नाउ वी कैलकुलेट द नेट फिगर, दैट इज टू बी एडजस्टमेंट. So this adjustment is 7,000 in account of A minus 3,000 in account of B plus or 4,000 in account of C plus 24 minus 24 is equal to ये हो गया नहीं. मतलब ये अमाउंट आपको क्रेडिट करना था, ये अमाउंट आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है. मतलब कुल मिला के 24,000 जो क्रेडिट होना था वो 24,000 टोटलिटी में क्रेडिट हुआ है, बट इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट में जो अमाउंट जानी चाहिए थी वो गलत हो गई थी. तो इसका जो नेट इम्पैक्ट आ रहा है वो ये है कि हम इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो फाइनल जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल debit to B's capital account to C's capital account. ओके, 7,000 यहां पर, 3,000 in account of B and 4,000 in account of C. This would be the single rectification entry for all these errors. Okay, समझ में आया आपको कि ये जो आपको करना था इस तरीके से एंट्री की जानी चाहिए. क्लियर? आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं ABC जिनकी कैपिटल आपको दे रखी है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है. राइट? While dividing the profit among the partners, they have ignored some conditions which were given in partnership. ठीक है? The ignorance were interest on capital which was to be given to the partners at the rate 10% per annum, which is ignored. Then interest on drawings which was to be charged from the partners, that is also ignored, and as well as salary and commission of 2 partners is also ignored. ठीक है. इन इग्नोरेंस का इंपैक्ट ये होगा कि फर्म के प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे. ठीक है. और वो किस रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में जाना चाहिए था और वो किसी और अमाउंट के रूप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे. मतलब ये है कि बिजनेस को या प्रॉफिट को या फर्म को उससे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है दे वुड बी रॉन्ग. यहां पे इस गलती से या इन गलतियों से किसी पार्टनर को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा. ठीक है. और ऑब्वियसली दिस शुड बी नाइदर एनी बेनिफिट टू एनी पार्टनर नॉर लॉस टू एनी पार्टनर.
ठीक है, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि किस पार्टनर को कितना कितना अमाउंट मिलना चाहिए था और प्रैक्टिकली इन गलती के कारण कितना कितना अमाउंट किसको जा चुका है, उसका डिफरेंस निकाल के हम आपस में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हमने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने देना चाहिए था लेकिन इग्नोर कर दिया, तो ये हम पार्टनर को दे रहे हैं 10% से। इसके अलावा these two partners should get salary and commission, तो ये हमने इनके अकाउंट में लिख दिया, मतलब इतना इतना अमाउंट ग्रॉसली इन पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमें पार्टनर से लेना था, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000, 1000 and 2000. So this is the amount which we have to give to the partner. This is the amount which we have to charge from the partner. So finally, we have to give him 5000. Okay. In this case, it is 9000. In this case, it is 10,000. So finally, these are the amount which should be given to the partners, जो कि हम इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर हमने इनको इग्नोर कर दिया, तो फर्म का प्रॉफिट उतनी ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस एंड इफ वी डोंट चार्ज एक्सपेंसेस प्रॉफिट विल इंक्रीज। ओके, अब प्रॉफिट अगर होंगे तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो यही अमाउंट जो हमने पार्टनर्स को नहीं दी, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और उसको हमने डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो हमने प्रॉफिट के रेशियो में ही डिवाइड किया होगा। तो दैट हैज बीन डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1. तो 24,000 जो हमें इस रेशियो में डिवाइड करना था फाइनली, बट दैट हैज बीन गिवन इन द रेशियो 12,000, 6,000 एंड 6,000. तो सिंपल सी चीज है कि इस पार्टनर को जो मिलना था 5,000, बट उसको गलती के कारण कितना मिल गया, 12,000. ठीक है, तो इसको फायदा हो गया। इस पार्टनर को मिलने चाहिए थे 9,000, लेकिन इसको मिले कितने, 6,000, इसको लॉस हुआ। और इस पार्टनर को मिले थे 10,000, लेकिन उसको मिले 6,000, इसको भी लॉस हुआ। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे। इसको जो 7,000 एक्सेस मिला है वो इसके अकाउंट से निकाल के जिनको कम मिला था उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये एंट्री हमने कर दी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। ओके, आई थिंक सो कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। मैं इसके सारे डेटाज यहाँ पे मिटा रहा हूं, ओके, और फिर मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। बिफोर दिस मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके कंटेंट्स हैं एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स हैं and their profit sharing ratio is 2:1 and their capitals are 3 lakh, 1,50,000 and 1,50,000. ठीक है, यहां पे इन्होंने कुछ इग्नोरेंस तो किया ही, साथ में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने कोई और रेशियो ही यूज कर दिया है। ठीक है, मतलब यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ऐसी ही मिस्टेक नहीं हुई है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो भी किया गया है दैट इज ऑल्सो इन डिफरेंट रेशियो। तो यहां पर आपको एडजस्टमेंट करते वक्त क्या क्या करना होगा मैं यहां पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं इग्नोरिंग द फॉलोइंग। आईओसी उन्होंने इग्नोर किया है विच वॉज एट द रेट 5% पर एनम। तो 3 लाख का 5% हम निकालेंगे विच वुड बी 15,000 इन केस ऑफ यहां पे हम नाम चेंज कर रहे हैं पार्टनर्स के ए, और क्वेश्चन नंबर यहां पे हो जाएगा ये 35, ये y एंड देन z। ओके, अब इसकी कैपिटल है 1,50,000, इसका हम 5% निकालेंगे 7,500 एंड 7,500। ओके, टोटल हो गया 30,000। क्या हमारे क्वेश्चन में सैलरी है, यस, सैलरी वॉज टू बी गिवन टू जेड विच इज नॉट गिवन। तो हम यहां पे जेड के अकाउंट में उसकी सैलरी डालेंगे, दैट इज 30,000। ओके, और ये 30,000। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है दैट वॉज टू बी गिवन इन द रेशियो 2 and 1। तो यहां पे जो आपका टोटल प्रॉफिट था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द टोटल प्रॉफिट इज 1,80,000। तो मैंने यहां पे लिखा 1,80,000, राइट। 1,80,000 में से ये दो अमाउंट पे करने के बाद
जो अमाउंट बचेगा दैट वाज टू बी गिवन इन द रेशियो 2, 2 and 1. तो अमाउंट इज 1,20,000 which was to be given to A, B and C in the ratio 2, 2 and 1. Okay, तो अमाउंट आएगा 48,000 and 24,000. यहां हमने टोटल किया तो ये टोटल हमारा आ रहा है 63,000, 55,500 and 61,500. ओके, दीज वर योर फिगर, फाइनल फिगर. यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कोई अमाउंट नहीं है, मीन्स निल 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 एंड निल. तो फाइनली टोटल डेबिट निल हो गया. अब इसमें से माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यही अमाउंट यहां पर आ जाएगा 1,80,000. 63,000 was the final figure to be given to X. 55,500 was the final figure to be given to Z, Y, and 61,500 final figure to Z. ठीक है, बट बाय आफ्टर इग्नोरिंग ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज हम इग्नोर कर चुके हैं और हमने जो टोटल प्रॉफिट है दैट हैज बीन डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो. प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 डिवाइडेड इक्वली इग्नोरिंग द फॉलोइंग चीजें. मतलब इन चीजों को दिए बिना ही जो भी हमारा प्रॉफिट था दैट वाज 1,80,000, वो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया इक्वल. ठीक है, तो यहां पे अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड 1,80,000 ऑफ कोर्स, बट अमाउंट इज डिवाइडेड 60,000 टू A, 60,000 to Y and 60,000 to Z. मतलब ये कि जो अमाउंट इसको 63,000 मिलना चाहिए टोटलिटी में, बट ही हैज गॉट ओनली 60,000. इसको 55,500 मिलना चाहिए, लेकिन इसको भी कितना मिला 60,000. और सेम इज हैपनिंग हियर. अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट इसमें से इसको माइनस करके, तो ये निल हो गया. इसमें से इसको माइनस किया 63,000, सॉरी 3,000. इसमें से इसको माइनस किया हमने तो 4,500 ये माइनस में, और इसमें से इसको माइनस किया 1,500 ये प्लस में. मीन्स हमें एडजस्ट करना है, इसके अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट. जो माइनस में आ रहा है वो डेबिट, जो प्लस में आ रहा है वो क्रेडिट. तो हमारी जो एंट्री बनेगी यहां पे हम लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल. अमाउंट होंगे यहां पे हमारे 4,500, 3,000 and 1,500. इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा. जब भी आप एडजस्टमेंट करेंगे तो जितना किसी पार्टनर के अकाउंट में डेबिट होगा उतना ही अमाउंट बाकी ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा. ठीक है, तो ये हमारा एडजस्टमेंट होगा इस तरीके से. ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. अब मेरे क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36. वो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लेवल पर उसको सॉल्व करें, और इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन करके बताऊंगा. ठीक है.